Hello guys, welcome to Technical Anand. Today we are here to study History and Civics specimen paper of ICSE 10th semester 1. Okay, it does not include that it has session A or session B, but it is in part 1 and part 2, I think. Yes. Part 1 is of 20 marks with 20 question of 1 marks. Part 2, which starts from 21, question number 21 to question number 26, means 6 questions of 2 marks, 12 marks, I think. Yes, 6 question 2 marks. And part 3 means question number 27 and 28 are of 4 marks. Okay, means 8 marks. So part 3 is of 8 marks, part 2 is of 12 marks, part 1 is of 20 marks. Okay, so let's start. Question number 1. If the strength of the house is 350 members, the quorum will be. Quorum means 10% of the total members, or you can say 1 upon 10th. Okay. So 350 up 350 into 1 upon 10 means 35. So 35 members is the correct answer. Okay. Option D. Question number 2. Lok Sabha is 550. Rajya Sabha is equal to 250. It's the seat, okay, members or seats. How many members of the Rajya Sabha retire once every 2 years? So 1/3 retire every 2 years. Okay. Residuary powers refer to the power to make laws on subject which are in the not part of this 3 list. Okay. Union list, which is of central government, will handle it. State list, state government will handle it. Concurrent list means both will handle. In concurrent list you can say that education will come, after that education will come, making roads, making tunnels will come, infrastructure will come in concurrent. And not a part of list मतलब रेसिडुअरी पावर्स मतलब विच आर नॉट एट द टाइम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तभी रेसिडुअरी पावर्स नहीं थे. रेसिडुअरी पावर्स में आता है आपका आईआईटी फील्ड, टेक्नोलॉजी, साइबर लिंक. ओके, साइबर रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, तो तभी उतना नहीं था ना, अभी उस पर है तो इसलिए उसे रेसिडुअरी पावर बोले. ओके. Who determines the salary and allowance of the MPs and ministers? So the parliament allows. Okay, parliament determines and allows. Okay. Who is the empowered to prolong an ordinance when the parliament is not in the session? ओके, मीन्स जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तभी किसको उसे प्रोलॉन्गेट करना पड़ता है? तो प्रेसिडेंट करता है. ओके, पार्लियामेंट की बात हो रही है इधर. ओके. Which of the following procedures authorizes the executive to draw funds from the consolidated funds until the budget is passed by the parliament? सो वोट एंड अकाउंट मतलब जैसे कि अगर आपके पास एग्जीक्यूटिव के पास अगर पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो अपना पार्लियामेंट से जाके मांगता है. ओके, गिव मी द मनी फॉर द बजट, मीन्स उसके लिए अपना पैसा मांगता है. ओके, पार्लियामेंट से मांगता है. ओके, ऑन द वोट ऑन अकाउंट. ओके. हु इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा? सो द मेंबर्स ऑफ विधानसभा. ओके. अभी आप लोग पूछोगे कि विधानसभा तो विधान परिषद क्यों नहीं? तो विधान परिषद हर एक स्टेट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन विधानसभा हर एक स्टेट में है. और विधान परिषद मतलब वो बस थोड़े लोगों का काउंसिल है. ओके. सो द मेंबर्स ऑफ द विधानसभा विल कम. कंप्लीट द गिवन एनोलॉजी. ओके, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट. ओके. So the speaker is the ex officio chairman, or you can say the presiding officer of the Lok Sabha. So vice president is the executive not presiding officer or ex officio chairman of the Rajya Sabha. Okay. Which statement does not apply to the subsidiary alliance? The kings virtually lost their powers. Yes. It was introduced by Lord Dalhousie. Yes. It was नहीं है, this is wrong. Okay, this was not, subsidiary alliance was not introduced by Lord Dalhousie. Okay, और Lord Wellesley ने introduced किया था. Okay, so this is wrong, does not apply. Okay, so means
Question number 2 is right. Okay, only 2. Okay, option 3. The year in which the Congress was established. So 1885 AO ने किया था, एल ऑक्सीवियन ह्यूम ने किया था कलकत्ता में. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट? स्वदेशी, बायकॉट, पैसिव रेसिस्टेंस एंड रेविलेविज्म. मीन्स जैसे तभी 23rd सेशन में आप लोगों ने देखा होगा, आप पढ़ोगे अभी, तो उसमें देखा था कि एक्सट्रीमिस्ट एक तरफ और असर्टिव एक तरफ. ओके, सो नहीं, ये लोग एक्सट्रीमिस्ट है. असर्टिव मतलब एक्सट्रीमिस्ट मीन्स एकदम नए नए, और मॉडरेट, और एक और ग्रुप बना था मॉडरेट. मीन्स ये जो है जो क्वेश्चन पेपर में दिया है वो एक्सट्रीमिस्ट है, और बाकी जो है वो मॉडरेट है. तो मॉडरेट का कैसा था कि वो लोग सेटलमेंट करना चाहते थे, पैसे ले दे के. मीन्स उनका वैसा था, सेटलमेंट करना था. ओके, लेकिन इनका क्या था, बायकॉट कर दो या तो स्वदेशी यूज़ करो, वैसा. ओके, असर्टिव में आप कह सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री थे, बिपिन पाल थे, वी कॉल ना दैट लाल बाल पाल. ओके, लाल बाल पाल. सो दे वर इन दिस नेशनलिस्ट. ओके, complete the given notice. Complete the given analogy. Simon Commission, civil disobedience movement, Cripps Mission, Quit India movement. Okay, the Supreme Commander of Indian National Army, Subhash Chandra Bose. Okay, he was the Supreme Commander ना. He only told that ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. INA. According to the Indian Independence Act 1947, which of the following are applicable to all princely states? They could remain independent. Yes, they can be independent. Means जिसको जो देश में रहना है वो रह सकता है. जैसे किसी को इंडिया में जाना है तो इंडिया में रह सकते हैं, किसी को पाकिस्तान में जाना है तो पाकिस्तान में रह सकता है. दे कुड ज्वाइन इंडिया. मीन्स उनको ऑप्शन भी था कि अगर आपको इंडिया ज्वाइन करना है, मीन्स वो ही हो गया. और ट्रीटीज विद द ब्रिटिश विल बी टर्मिनेटेड. मीन्स जितने भी ब्रिटिश के एक्ट्स थे, लॉ थे, ट्रीटीज़ थी, वो सब बायकॉट हो जाएंगी, वो सब टर्मिनेटेड हो जाएंगी. दे कुड चूज टू बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान. ओके, मीन्स वही बोल रहा हूँ, उनको चॉइस था या तो इंडिया या तो पाकिस्तान. ओके, सो ऑल ऑफ द अबव वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट. ओके, ऑफ 1947. सो ए इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. Unity, faith and sacrifice was the motto of forward block. Okay, इधर underline replace the underlined word to correct the statement. तो इधर underline किया नहीं किया था, पर this is the underline one. Okay, so INA अभी इधर पढ़ा था ना. हाँ, सुप्रीम कमांडर सुभाष चंद्र बोस की ग्रुप थी. ओके, INA. तो उनका ये मोटो था कि यूनिटी, फेथ एंड सेक्रीफाइस. तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. ओके, लाइक दैट ओनली. सॉरी. डैश डिनाइड द पेंशन अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. तो नानाजी साहिब ने किया था ना. मीन्स उनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें हुई थी उनको. बाद में पहले कानपुर चले गए, बाद में उधर से वो नेपाल चले गए, बाद में उनको कुछ पता नहीं चला. ओके, तो नाना साहिब को ही इतना प्रॉब्लम हुआ था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से. जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट इम्प्लाइड दैट सोल्जर could have to travel overseas to fight. Okay, लेकिन ये this was the cause of military. Okay, इंडिया में जैसे ब्राह्मण लोग भी सोल्जर थे, और ब्राह्मण में ये टैबू था कि आप सीज क्रॉस करके जाओ कहीं. ओके, मीन्स ब्राह्मण में टैबू है कि आपको कहीं सी क्रॉस करके नहीं जाना है. ओके, अगर आपको जाओगे तो ये मीन्स उनकी मान्यता के खिलाफ था. ओके, Mahatma Gandhi signed a pact with Dash to get the civil disobedience law movement. Okay, so Lord Irwin ने किया था. The nationalist felt Bengal was partition to divide Hindu and Muslim. Okay, बंगाल पार्टीशन क्यों हुआ था? क्योंकि डिवाइड हिंदू और मुस्लिम. क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी नेशनलिस्ट थे, जितने भी क्रांतिवीर यू कैन से, जितने भी क्रांतिकारी थे, वो सब लोग बंगाल से ज़्यादातर आ रहे थे. तो ब्रिटिश ने सोचा कि अभी बंगाल की तरफ से ज़्यादा रहे तो अभी लगता है उधर डिवाइड एंड रूल लगाना पड़ेगा. तो इसलिए उन्होंने बंगाल को पार्टीशन कर दिया. तो ईस्ट बंगाल इज़ मुस्लिम स्टेट एंड वेस्ट बंगाल इज़ हिंदू स्टेट.
तो अभी आप देख सकते हो कि ईस्ट बंगाल जो कि अभी बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल अभी इंडिया में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो चुका है और 20 मार्क्स, यानी 20 मार्क्स अभी हमारे हाथ में है। नाउ पार्ट टू में आपके जितने भी एमसीक्यू है उसके दो आंसर रहेंगे। हाँ, when can a parliament not legislate on an object include in the state list? When the state is ruled by the coalition and when the Lok Sabha passes a resolution by a 2/3 majority. Okay, not legislated. Okay, स्टेट लिस्ट के बारे में बात हो रही है। पार्लियामेंट नॉट लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट के बारे में। ओके, विच ऑफ दिस आर द नॉट एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द लोकसभा, मीन्स ऐसे कौन से पावर है जो लोकसभा इंजॉय नहीं करता है, यानी जो लोकसभा के पास नहीं है। तो वो है कि ऑर्डिनरी बिल पास करना और लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाना या तो लॉ ऐड करना। ओके, तो वो लोकसभा के पास नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर एक स्टेट के पास अपना अलग अलग रूल होता। ओके, विच ऑफ दिस आर द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मेकिंग लॉ ऑन द सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट एंड अप्रूविंग ऑर्डिनेंस। ओके, तो लेजिस्लेटिव का पूछा है, बाकी ये ऑप्शन 3rd और 4th फाइनेंशियर है। ओके, इधर लेजिस्लेटिव पूछा है। क्वेश्चन ध्यान से रीड करना आप लोग जब भी पेपर सॉल्व करोगे तो। फ्रॉम द गिवन लिस्ट आइडेंटिफाई द एम्स ऑफ द मुस्लिम लीग to protect and advance the political rights of the Muslim, to prevent hostilities between Muslims and other communities. मीन्स मुस्लिम लीग का यही मोटो था कि मुस्लिम एकदम अलग हो जाए और उनको भी सेम राइट्स मिले, क्योंकि उनको लगता था कि उनको राइट्स नहीं मिल रहा है, तो इसलिए चाहते थे कि मुस्लिम को और राइट मिले, इसलिए वो लोग अलग हो गए। ओके, आइडेंटिफाई द क्लॉजेस ऑफ द Rowlatt Act. Okay, restriction on the movement of people and suspension of the habeas corpus writ. Okay, इधर भी यही सेम आंसर जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था ना, इधर द नेशनलिस्ट फेल्ड बंगाल वॉज पार्टीशनड। ओके, तो वही है कि बंगाल से बहुत सारे, बोल रहा हूँ ना आपको कि बंगाल से बहुत सारे, कांग्रेस भी उधर ही फॉर्म हुआ था आपका, बाद में बंगाल में ही बहुत सारे नेशनलिस्ट आ रहे थे, मीन्स उधर से बहुत सारे क्रांतिवीर आ रहे थे। इसलिए ब्रिटिश ने क्या सोचा कि अब इधर डिवाइड एंड रूल करना पड़ेगा, तो इसलिए वेस्ट बंगाल हिंदू एंड ईस्ट बंगाल मुस्लिम। ओके, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ पीपल, मीन्स बंगाल में कोई जा नहीं सकता और बंगाल से बाहर कोई आ नहीं सकता। धीरे धीरे उधर फोर्स, बॉर्डर पे बंगाल के फोर्स लगा दिया था। ओके, उसके बाद क्या था, सस्पेंशन ऑफ द हेबियस कॉर्पस रिट। हेबियस कॉर्पस रिट मतलब अगर आपको किसी को अरेस्ट करना होता था ना, तो आपको पहले उसको नोटिस देना पड़ता था। ओके, लेकिन अभी कैसा, आप पहले अरेस्ट कर लो, उसके बाद 2 साल के लिए आप जेल में डाल दो, उसके बाद बातचीत होगी। ओके, ऐसा हुआ था। जैसे आप अरेस्ट करके डायरेक्ट जेल में डाल दो, वरना अभी कैसा होता है, आपको अरेस्ट करते हो आप, यू कैन डू जज, यू कैन बाय द लॉ, यू कैन कम आउट। ओके, लेकिन तभी वैसा कैंसिल कर दिया था। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू मैच द फॉलोइंग। ओके, ज्योतिबा फुले ने क्या फाउंड किया था, सत्य शोधक समाज, यानी 1st का 4th। राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया था, ब्रह्मो समाज उन्होंने फाउंड किया था। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने फाइंड आउट किया था। उसके बाद AOU यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्होंने फाउंड किया था, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। सो पार्ट 2 भी हमारा ख़त्म हो गया, यानी 12 मार्क्स भी हो गए, यानी टोटल 32 मार्क्स हम लोग ने सॉल्व कर लिए बस 14 मिनट्स में। ओके, नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। नहीं, ये तो हो गया ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, तो आप ये पैराग्राफ रीड करते हैं। ऑन February 4, 1922, a large group of nationalist volunteers has gathered on the streets of the small obscure hamlet. More than a year had passed since Mahatma Gandhi had launched the movement with the aim of attaining Purna Swaraj and full independence. The volunteers marched towards the streets, shouting slogans of Gandhi and the Khalifat. Okay, soon they walked into the police. Okay, sticks and stones were thrown from one end, in return bullets from the other. Means जो नेशनलिस्ट थे वो लाठी से चार्ज कर रहे थे, बाद में पत्थर फेंक रहे थे उनके ऊपर,
लेकिन पुलिस क्या कर रही थी, डायरेक्ट बुलेट्स दाग रही थी, मीन्स गन चला रही थी. ओके. As the throne grew larger and fairer, the cops retreated inside the police station. The protesters doubted the building in kerosene and set it on the fire. The 23 policemen perished. Perished मतलब death होता है. A total of 228 people were brought to trial in the accident, out of which 19 were sentenced to death. Okay, तो ये incident, where did incident taken place? Okay, so answer is Chauri Chora. Okay, which movement did Gandhiji withdraw because of this movement, because of this incident? So non-cooperative is the answer. Non-cooperative movement. ये इंसिडेंट की वजह से उन्हें ये मूवमेंट स्थगित करना पड़ा था, यू कैन से विड्रॉ करना पड़ा था और रोकना पड़ा था और पोस्टपोन करना पड़ा था, यू कैन से. आइडेंटिफाई एनी टू इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट दैट वाज सस्पेंडेड ड्यू टू दिस इवेंट. इंस्टिल्ड कॉन्फिडेंस इन द पीपल, प्रोमोटेड सोशल रिफॉर्म्स. ओके, ये 2 इम्पैक्ट हुआ था. ओके, अभी बस लास्ट क्वेश्चन है ये. हाँ, क्वेश्चन नंबर 28. इधर अभी ये इमेज बेस्ड है, ये पैराग्राफ बेस्ड है, ये इमेज बेस्ड है. आइडेंटिफाई द मैन विथ महात्मा. सो लॉर्ड माउंटबेटन इज द आंसर. ही वॉज डिप्यूटेड टू इंडिया फॉर द फॉलोइंग रीजन: फॉर पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर. पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, तभी इतने शांत से बैठे हैं ना, एकदम हंस हंस के बातें कर रहे हैं. ओके. Identify from the list 2 proposals of the plan formulated by him: formation of constituent assembly and the setting of boundary commission. ओके, तो ये जो प्रपोजल लॉर्ड माउंटबेटन गांधी जी के लिए लेके आए थे कि आप ये दोनों करिए पीसफुली. ओके, सो वी हैव सॉल्व्ड आवर हिस्ट्री एंड सिविक्स specimen paper of 40 marks in just 17 या 18 minutes. Okay, so this paper was quite easy, but you have to prepare. प्रिपेयर करोगे तभी easy रहेगा. ओके, टोटल इसका 40 मार्क्स है. पेपर was easy, quite easy. So we have completed. So my new video on the next specimen paper will come soon. Till that, stay home, stay safe. Thank you for watching. Thank you.